نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خدمت میں کافی دن بعد حاضری کا موقع ملا۔ آج آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ پیش کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ناجائز محبت ختم کرنے کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں کہ ہماری لڑکی یا ہمارا لڑکا غلط ٹریک پر چل پڑا ہے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے یا اس غلط ٹریک سے یا غلط راستے سے جان چھڑوانے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھو، انشاءاللہ تعالی نفع ہی نفع حاصل ہوگا۔ اس وظیفے کے کرنے سے پرانی ناجائز محبت ہو، پرانی سے پرانی لڑکی اور لڑکے کے درمیان ناجائز تعلق ختم کرنے کے لیے اس وظیفے کو ایک دفعہ کر کے دیکھو۔ جتنی بھی پرانی اور ناجائز محبت لڑکی اور لڑکے کے درمیان موجود ہے، انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وظیفہ کریں اور محبت ناجائز ختم نہ ہو۔ وہ والدین جن کی بچیاں غلط راستے پر چل پڑی ہیں، یا وہ والدین جن کے بچے غلط راستے پر چل پڑے ہیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ ہمارا بتایا گیا عمل گھر بیٹھ کر کریں۔ آپ کو کسی عامل یا دم والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ وظیفہ کرو، انشاءاللہ تعالی نفع ہی نفع ہوگا۔ جو لڑکا کسی کی لڑکی کی محبت میں دیوانہ ہے، وہ محبت جو ناجائز ہے، جس کی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں والدین یا ماؤں بہنوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے شوہر بھی اگر غلط راستے پر چل پڑے ہوں، شادی شدہ ہوں، یا وہ مرد حضرات جن کی بیویاں غلط راستے پر چل پڑی ہوں، ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ ہمارا بتایا گیا عمل کریں، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو، غلط راستے پر چل پڑے ہوں تو ان کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک دفعہ یہ وظیفہ کرو، انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ وظیفہ کرنے کی وجہ سے ہی اور کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس وظیفے کی برکت سے وہ ناجائز محبت سے جان چھٹکارا حاصل ہوگا۔ دوسرے نمبر پر جو بھی یہ وظیفہ کرے، وضو کی حالت میں کرے۔ وظیفہ توجہ فرمائیں، وہ لڑکی یا لڑکا، وہ مرد یا عورت جو غلط راستے پر ہوں، ان دونوں کے سروں کے بال تھوڑے تھوڑے بال ہوں، وہ اتار لیے جائیں۔ وہ بال اتار کر ان بالوں کو اکٹھا کر کر ان کے اوپر سورۃ لہب 30ویں پارے میں ہے،
तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये वाली सूरत 21 मरतबा पढ़कर उन बालों के ऊपर दम करना है और वो बाल जो हैं वो किसी आग वाली जगह पर दफन कर देने हैं जिस जगह आग जलती हो, कमो बेश 2 मरतबा आग जलती हो, उसमें चूल्हे के नीचे दफन कर दें या किसी ऐसी ज़मीन पर दफन कर दें जिसके ऊपर आप मुसलसल आग को जला सकें 21 दिन। इतने नीचे बाल दफन करने हैं कि बाल जल ना सकें और उन बालों को सेक पहुँच सके, आग की गर्मी उन बालों तक बआसानी पहुँच सके इंशाअल्लाह ताला ये करना है। और दूसरे नंबर पर साथ हर रोज़ 21 मरतबा सूरत लहब 21 दिन पढ़ते रहना है। जहाँ पर ये बाल दफन किए गए हैं उसके पास बैठकर हर रोज़ सुबह शाम 21 मरतबा सूरत लहब पढ़नी है। वो लड़कियां या जो लड़के गलत रास्ते पर चल पड़े हैं वो ये वजीफ़ा जो भी करेगा इंशाअल्लाह ताला राह रास्त पर आ जाएंगे। जब भी ये वजीफ़ा करना है वज़ू की हालत में करना है, बग़ैर वज़ू के कोई भी वजीफ़ा हमारा नहीं करने की इजाज़त। जो भी वजीफ़ा करे वज़ू की हालत में करे और हलाल रिज़्क़ कमाए और हलाल रिज़्क़ खाए। झूठ, ग़ीबत, हसद, कीना, बुग़्ज़ से बचे। इंशाअल्लाह ताला हमारा वजीफ़ा 100% कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगा। इसके अलावा अगर कोई बंदा ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकता और नाजायज़ मोहब्बत ख़त्म करने के लिए वो हमसे रब्ता भी फरमा सकता है। शर्त यह है कि नाजायज़ मोहब्बत हो। इंशाअल्लाह ताला हम तवीज़ भी देंगे। बरोज़ एतवार अपनी रहाइश गाह पर 87 जनूबी लाहौर रोड सरगोदा कोई भी हम तक आना चाहता है या हमसे मुलाकात करना चाहता है तो हमसे रब्ता फरमा कर आ सकता है। दूसरे नंबर पर वजीफ़ा जो है जो बयान किया गया है इसकी इजाज़त हर ख़ास व आम को है। नाजायज़ लोगों को अगर ये वजीफ़ा पढ़ कर तंग करेगा तो दुनिया में भी बर्बाद होगा और आखिरत में भी बर्बाद होगा। क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं मियाँ बीवी लोगों के ऊपर पढ़ना शुरू कर देते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, नफ़रत, अदावत, मुखालफत शुरू हो जाए। लेकिन जो बंदा इस वजीफ़े को इस नीयत से करेगा इंशाअल्लाह ताला वो दुनिया में भी बर्बाद होगा और आखिरत में भी बर्बाद होगा। लिहाजा इस वजीफ़े को करने की एक शर्त ये ज़रूर है कि इस वजीफ़े को जिस मकसद के लिए बयान किया गया है उस मकसद के लिए करें। और जो भी बंदा इस वजीफ़े को करना चाहे कर सकता है उस मकसद के लिए जो मकसद मैंने आपकी खिदमत में बयान किया है। और मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमसे रब्ता भी फरमा सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नीचे चले जाएं तो हमारे कार्ड वीडियोस के ऊपर मौजूद हैं, उन नंबर पर रब्ता फरमा सकते हैं। क्योंकि उन कार्डों के ऊपर बरोज़ जुमेरात भी लिखा हुआ है। आप जुमेरात को भी आ सकते हैं लेकिन एतवार को आएँ तो बेहतर है, क्योंकि किसी मजबूरी की वजह से हम जुमेरात को नहीं बैठते और जितनी भी कोई मजबूरी हो हम एतवार को अपनी रहाइश गाह पर लाजमी हाज़री देते हैं आप लोगों की खिदमत के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक बात और याद रखें कि हमारा ये यूट्यूब चैनल अमलियात अवान जो है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। क्योंकि आपको कोई भी वीडियो बयान हमारा तलाश करना नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला आप तक बआसानी उसका नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो साथ बेल वाला जो बटन है उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आई हो तो फिर आप हमसे रब्ता बार बार फरमा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।